ناظرین، عراق کے مقدس شہر کربلا میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں روضہ حضرت امام حسین کے اندر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین کی کثیر تعداد موجود ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اربعین کی مناسبت سے پوری دنیا کے لوگ کربلا میں اکٹھا ہوتے ہیں اور بالخصوص ہندوستان سے کثیر تعداد میں لوگ اس مقدس سرزمین پر یہاں پر آتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی عراق اور ہندوستان کے درمیان تعلقات قائم ہیں۔ تجارتی تعلقات کے ساتھ روحانی رشتہ بھی ان دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے۔ عراق کے کربلا، نجف، بغداد اور دیگر مقدس شہروں سے کئی اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیاء کرام ہندوستان تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ عراق کے شہر نجف اشرف میں آرام فرما رہے مذہب اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا کی سرزمین پر جاں بحق ہونے والے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بغداد شریف میں سکونت پذیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح عراق کی سرزمین پر کئی عظیم، جید، روحانی اور بابرکت شخصیات کے مزار موجود ہیں۔ لہٰذا دیگر ممالک کے ساتھ ہندوستان کا بھی عراق سے عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی تعداد اکثر و بیشتر عراق کا رخ کرتی ہے اور یہاں کے مختلف شہروں میں موجود مقدس روضوں کے زیارت سے سرفراز ہوتی ہے۔ ہندوستان اور عراق کے درمیان نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ سماجی، تعلیمی اور طبی شعبوں میں بھی تعلقات قائم ہیں۔ سید سعد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اربعین بلکہ عام دنوں میں بھی ہندوستان سے بڑی تعداد میں زائرین عراق آتے ہیں، تو اس طرح عراق اور ہندوستان کے درمیان تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں؟ نعم، هناك علاقات جيدة بين العراق والهند، وفي فترة سابقة زار السيد السفير الهندي زار العتبة الحسينية المقدسة والتقى بسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكانت هناك اتفاقات جيدة بين العتبة الحسينية المقدسة وجناب السيد السفير الهندي، علاقات جيدة، ونحن إن شاء الله نوفر جميع الخدمات للزائرين الهنود بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم. ومن ناحية ثانية هناك تعاون كبير بين العتبة الحسينية المقدسة وإحدى المستشفيات المهمة في مدينة بانغلور الهندية، وبالتنسيق مع الأخ أغا سلطان، فهنالك تسهيلات كبيرة من هذه المدينة الطبية لمعالجة المرضى العراقيين وخصوصا الذين تكون حالاتهم المادية ضعيفة۔ سال 2018 اکتوبر کے آخری ہفتے میں کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہلم انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اربعین کے نام سے مشہور حضرت امام حسین کے چہلم میں ہندوستان کے زائرین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خاص بات یہ رہی کہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے آئے مسلمانوں نے ترنگا پرچم کے ساتھ کربلا شہر میں جلوس برآمد کیا۔ اربعین کے موقع پر مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے جلوس برآمد کرتے ہیں۔ ہندوستان کے زائرین نے بھی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قومی پرچم کے ساتھ جلوس کا اہتمام کیا۔ خیمہ گاہ سے یہ جلوس برآمد ہوا۔ عزاداری، ماتم، نوحہ خوانی اور لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ ہندی شیعہ مسلمانوں کا یہ جلوس گونج اٹھا۔ فاطمہ زہرا کا لال، حسین میں نڈھال آتا ہے اکثر خیال، کس سے کر
करूं ये सवाल। जब तलक बातें चली है बस यही पढ़ता रहा, सुबह रब अल आला, सुबह रब अल। इस जुलूस में दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दीगर शहरों के ज़ायरीन मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार जावेद जाफरी और बेंगलुरु के माहिर तालीम आगा सुल्तान, इस तरह कई अहम शख्सियात भी जुलूस में शामिल थीं। खीमागाह से रोज़े हज़रत इमाम हुसैन में जब जुलूस दाखिल हुआ तो मंजर और जज्बाती और रूहानी और वजदानी नजर आने लगा। ज़ायरीन शिद्दत के साथ अज़ादारी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन के ज़री मुबारक का तवाफ़ करते हुए आगे बढ़े। हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े से बाहर निकलकर ये जुलूस बैनुल हरमैन में दाखिल हुआ, यानी रोज़े हज़रत इमाम हुसैन और रोज़े हज़रत अब्बास के दरमियान मौजूद फासले को बैनुल हरमैन कहते हैं। बैनुल हरमैन से जुलूस रोज़े हज़रत अब्बास में दाखिल हुआ। लब्बैक या अब्बास के नारों के साथ आज़ादारी करते हुए जुलूस ने हज़रत अब्बास के ज़री पाक की ज़ियारत की। रोज़े हज़रत अब्बास के बाबुल क़िबला से बाहर निकलकर अज़ाइल हुसैनुल हिंद जुलूस इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस के इनेकाद में सरगर्म रहने वाले आगा सुल्तान कहते हैं कि साल 2011 से अरबईन के मौके पर हिंदुस्तानी ज़ायरीन करबला में खुसूसी जुलूस बरामद करते आ रहे हैं। 2011 में पहला जुलूस निकला तब से अब तक तादाद बढ़ रही है और जो भी पिलग्रिम्स हिंदुस्तान से आते हैं वो इकट्ठा होते हैं। अरबईन के एक दिन पहले कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन होता है, तमाम हिंदुस्तानी एक जगह कैसे इकट्ठा होते हैं? हमारे ग्रुप में वॉलंटियर्स हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं और ये पूरा टीम वर्क है, एक आदमी का काम नहीं है और ये जुलूस पूरे मोमिनीन और मोमिनात का है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार जुलूस रहा। जहाँ पे हर इंडिया के हर जुलूस के बहुत अच्छा खुशी का मौका है, अच्छा है। और हर शियाने हैदर कर्रार ये चाहता है कि अरबईन हम करबला में करें, क्योंकि शहज़ादी ज़ैनब ने अपने भाई की अरबईन की मजलिस के लिए कहा था कि मेरे भाई की मजलिस कौन करेगा। आज दुनिया से 3.5-4 करोड़ आदमी यहाँ पर आता है और इतनी छोटी सी जगह पे इतना आदमी समा जाता है, ये मौजूदा है मौला का। 1400 साल हो गए, कल भी गम ताज़ा था, आज भी गम ताज़ा है। लगता है कि अभी इमाम हुसैन शहीद हुए। 10 बार आर्ट करीबन आ चुका हूँ मैं, जितनी बार आता हूँ वही महसूस होता है, कोई कमी नहीं होती। और ये एक अल्लाह मशीयत नहीं कहेगी, अल्लाह एक मौजज़ा समझिए कि अपने वालिदैन पर 1-2 साल बाद आदमी रोना मुश्किल समझता है और ये अब 1350 साल बाद आप वही हादसा सुनकर रोते हैं। आप मतलब गिड़गिड़ा के रोते हैं कई लोग, तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा अपने आप में है। अरबईन में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से भी कसीर तादाद में ज़ायरीन करबला आए हुए हैं। कई नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इमामत की मोहब्बत में तमाम दुनिया के, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, लंदन हो, अमेरिका हो, चाहे जितने भी सारे कंट्री के लोग इधर हर साल अरबईन को जमा होके, ये तो माशाअल्लाह से मसला ये ज़िंदा मौजूदा है। हर साल करोड़ों की आबादी कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है, सबका रहना खाना पीना ये तो ज़िंदा मौजूदा है। इंडियन की तरफ से जुलूस निकाला गया, जो पूरे इंडिया के कोने कोने से जो ज़ायरीन आए थे जुलूस लेके चले हैं, इंडिया का झंडा लहराते हुए।
बरसों से तमन्ना रहती है हर एक शिया आदमी को कि यहाँ पर आए, शिया नहीं कोई हर मज़हब का आदमी आके ये मौजज़ा देखे कि ये होता कैसे है कि इतने लोग इतनी एक ही जगह जमा होना और अरबईन के दिन मखसूसी के लिए एक मौजज़ा ही है मैं कहूँगा। जुलूस के साथ शब अरबईन के मौके पर हिंदुस्तानी ज़ायरीन की खुसूसी मजलिस भी करबला में मुनक़िद हुई। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन के चहल्लुम में जहां दुनिया भर के ज़ायरीन मौजूद रहते हैं, वहीं हिंदुस्तानी मुसलमान भी तिरंगा झंडे को थामे वतन अजीज़ की नुमाइंदगी का हक़ भी अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रोज़े हज़रत इमाम हुसैन के ऑडिटोरियम में। यहाँ पर मजलिस जारी है और कसीर तादाद में हिंदुस्तानी ज़ायरीन इस मजलिस में शिरकत किए हुए हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आज अरबईन का दिन है, करबला की सरजमीन मानो रो रही है। रोज़े हज़रत इमाम हुसैन के अंदर और बाहर मातम मनाया जा रहा है। नाज़रीन, इस मौके पर मैं गुलबर्गा के शायर डॉक्टर वहीद अंजुम की नज़म पेश करना चाहूँगा, मनक़बत हुसैन। वहीद अंजुम फरमाते हैं कि एक जियाला आके ठहरा करबला की रेत पर, एक जियाला आके ठहरा करबला की रेत पर, नग़्मे हक़ इसने छेड़ा करबला की रेत पर। क्या हुसैनी शान थी, क्या जज्बे ईमान था, क्या हुसैनी शान थी, क्या जज्बे ईमान था। थे अदू के बीच तन्हा करबला की रेत पर, थे हुसैन इब्ने अली रमज़े हकीकत आशिना, थे हुसैन इब्ने अली रमज़े हकीकत आशिना। इसलिए सर को कटाया करबला की रेत पर, लिख दिया अपने लहू से खुद ही ये शब्बीर ने, लिख दिया अपने लहू से खुद ही ये शब्बीर ने। हो गया इस्लाम जिंदा करबला की रेत पर, रोशनी हक व सदाकत की है जो नामे हुसैन, रोशनी हक व सदाकत की है जो नामे हुसैन। हश्र तक जिंदा रहेगा करबला की रेत पर। थी तलब आले नबी को आबे कौसर की वही, थी तलब आले नबी को आबे कौसर की वही। बह रहा था गोया के दरिया, बह रहा था गो के दरिया करबला की रेत पर। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं अरबईन का ये मंज़र। साल 2018 का अरबईन, बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत किए हुए हैं और पूरे करबला की सरज़मीन पर मातम मनाया जा रहा है, आज़ादारी की जा रही है और शहदाए करबला को याद किया जा रहा है और खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। 30 अक्टूबर 2018 अरबईन का दिन करबला शहर दुनिया भर के अक़ीदतमंदों को अपने अंदर समोए हुए था। करबला की हर सड़क, गली कूचे, मोहल्ले, हर तरफ आशिकाने हुसैन का जमे गफ़ीर था। रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन, रोज़ा हज़रत अब्बास के अंदर बाहर अतराफ ज़ायरीन का हुजूम, कतारें देखने के काबिल थी। कई ज़ायरीन जहां ठहरे वहीं से ही दुआएं आमाल अदा कर रहे थे। तवाफ के लिए मानो ज़ायरीन का समंदर ही उमड़ पड़ा था। अक़ीदतमंदों का मातम और गहरा दर्द भरा नजर आ रहा था। करबला की ज़मीन पर अरबईन में होने वाला ये मातम, दुख, दर्द व कर्ब हज़रत इमाम हुसैन और करबला के दीगर मज़लूमीन से गहरी मोहब्बत, शफ़क़त और अक़ीदत का इजहार करता है। शब अरबईन के मौके पर हिंदुस्तानी ज़ायरीन की खुसूसी मजलिस मुनक़िद हुई।
اہم بات یہ تھی کہ یہ مجلس روزہ حضرت امام حسین کے احاطے میں ہی موجود آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی۔ اس مجلس میں ہندوستان کے مختلف شہروں سے آئے زائرین نے شرکت کی۔ رات بھر جاری رہی اس مجلس میں تلاوت قرآن مجید ہوئی، واعظ اور نوحہ خوانی کی گئی اور ماتم کیا گیا۔ فقال جبرائيل عليه السلام يا رب تأذن لي لأكون معهم سادسا فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك ہندوستان اور چند دیگر ممالک سے آئے ہندوستانی نژاد باشندوں نے اس خصوصی مجلس میں شرکت کی۔ روزہ حضرت امام حسین کے دامن میں بیٹھ کر چہلم کی رات منانے کا موقع ملنا مانو ان تمام زائرین کے لیے یادگار دن تھا۔ ان افراد نے کربلا میں کیے گئے وسیع تر انتظامات پر اطمینان اور سکون کا اظہار کیا۔ ہم لوگ پورے 20 لوگ آئے ہیں یہاں پہ اربعین منانے کے لیے۔ نجف سے کربلا تک پیدل آئے ہیں، ہم چل کے آئے ہیں سارا گروپ۔ یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ امام حسین کیا ہے۔ کافی اچھا رہا سفر، بہت لطف آیا چلنے میں، اور بہت ایمان تازہ ہو گیا دیکھنے کے بعد کہ لوگ ہر ایک ایج کے لوگ اس میں حصہ لیا، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ امام کا سورا میریکل ہے، کتنے یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں، اور بہت غریب لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ امیر لوگ ہیں جیسا دکھتے، جیسا ہی ایئرپورٹ سے نکلے وہ جو حالات ہیں عراق میں، کتنے لڑائی جھگڑے میں سے نکلے ہیں یہ لوگ، تو ویسے اتنا امیر تو نہیں ہے۔ جو بھی لوگ ادھر راستے میں ملتے ہیں وہ امیر لوگ نہیں رہتے، اور جو بھی ہے ان کے گھر میں وہ ایسا بغیر پوچھے دیتے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتا، وہ آتے ہی رہتا وہ کھانا۔ ہاں دیکھیے، ایک رمضان کا مہینہ ہے جب اللہ سے جڑتے ہیں، ایک اللہ کے بندوں سے جڑتے ہیں جو اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے، تو ان سے جڑنا یہ وہ مہینہ ہے جب ان سے جڑتے ہیں، تو یہ دونوں ایک اہمیت رکھتے ہیں اور الگ طریقے سے آپ کو ریچارج کرتے ہیں۔ ہم لوگ پہلی بار کربلا کی زیارت کو 2014 میں آئے تھے، جو کہ عرفے کے موقع پہ تھا۔ پھر اس کے بعد 2016 میں ہم نے پہلی اربعین کی واک کی تھی، اور یہ ہماری سیکنڈ ٹائم واک تھی۔ پچھلی دفعہ میں اور اس دفعہ میں ہمیں یہ فرق محسوس ہوا کہ چیزیں بہت زیادہ اور آرگنائز تھیں، بہت اور منتظم تھیں۔ یہ الحمدللہ میرا دوسرا اربعین ہے، 2014 میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ دوسری مرتبہ از بیٹر، کیونکہ زیادہ سوچ ہوتی ہے کہ کیا ریفلیکشن زیادہ ہوتا ہے کہ کیسے خود کی زندگی کو اچھا بنائے، جو ہمارے میں ویکنس ہے وہ کم کرے۔ اور حسین سب کا ہے، کسی شیعوں کا نہیں ہے، سب ہیومینٹی کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا کرسچنس کو بھی دیکھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھا ہے یہاں۔ ہندوستانی زائرین کے لیے علیحدہ جلوس اور مجلس برآمد کرنے کا موقع فراہم کرنے پر بنگلورو کے سماجی کارکن آغا سلطان نے روزہ حضرت امام حسین اور روزہ حضرت عباس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ہم شکر گزار ہیں اتبال حسینیہ کے چیف کلرک شیخ عبد المہدی الکربلائی اور ان کی مینجمنٹ ٹیم کے، جنہوں نے یہاں ہم کو مجلس کرنے کا پرمیشن دیے ہیں۔ شب اربعین ہے آج، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نصیب والے ہیں جو اس مقام پہ، اس آڈیٹوریم میں عشاء کے بعد سے صبح تک ہم یہاں مجلس کرتے ہیں اور اعمال اربعین بھی کرتے ہیں۔ اربعین کے موقع پر کربلا میں موجود زائرین نے مقدس روزوں کی زیارت کے ساتھ خیمہ گاہ اور دیگر یادگاروں کی بھی زیارت کی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اربعین پر ہمارا خصوصی پروگرام جو کربلا سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں خیمہ گاہ کے سامنے۔ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔
प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अरबईन के मौके पर करबला की सरजमीन पर आप देख सकते हैं अकीदतमंदों का, ज़ायरीन का ठांटे मारता हुआ समंदर। दुनिया के कोने कोने से शिया मुसलमान इस मुक़द्दस सरजमीन पर इकट्ठा हुए हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। करोड़ों के मजमे का ताम, क़याम और दीगर इंतज़ामात करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। करबला में हर साल इंतज़ामात और सहूलियात में इजाफा हो रहा है। ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र तोसी और तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अरबईन के इनेकाद में इराक़ की हुकूमत, बलदिया और मकामी इंतज़ामिया सरगर्मी से अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। दूसरी जानिब रोज़े हज़रत इमाम हुसैन और दीगर मुक़द्दस रोज़ों की इंतज़ामिया भी दिन और रात ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए रोज़े हज़रत इमाम हुसैन ने करबला की मज़ाफ़ात में 5 पिलग्रिमेज सिटी यानी ज़ायरीन के शहर तामीर किए हैं। मदीनतुज़ ज़ायरीन के नाम से मशहूर इन मकामात में बैक वक्त हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन क़याम ताम कर सकते हैं। हर शहर में एक खूबसूरत मस्जिद, अस्पताल, जदीद सहूलियात से आरास्ता रिहायशी कमरे मौजूद हैं। يعني تعرف العتبة يعني توسعت وفتحت مكاتب في أغلب الدول الحقيقة الأوروبية الأجنبية العربية، فاكو استضافات من عدة. طبعا المدينة استقبلت الزائرين من 7 قارات حقيقة، يعني كل قارات العالم احنا استقبلناهم وشرفنا بخدمتهم في المدينة. فاعتيادي اكو زوار من الهند، من باكستان، من ايران، من اذربيجان، حتى من الهند، من امريكا، من كافة دول العالم حقيقة، وهذا شرف عظيم انه حتى نكون بخدمتهم خصوصا في هذه يعني الزيارة المليونية وبقية الايام. We have about more than 260 volunteers coming from the provinces from Iraq, most of them from Muthanna province. They help to finish the work and do all the things done in the restaurant. We serve 3 meals, the breakfast, dinner and lunch, plus other meals during the day. अरबईन में काफिलों की आमद का मंजर अरब की तहजीब और सकाफत को भी नुमाया करता है। ऊँटों पर सवार होकर ताज़िया ताबूत के साथ गम हुसैन को याद करते हुए ज़ायरीन करबला में दाखिल होते हैं। ज़ायरीन के लिए लगाई जाने वाली सबीलें न सिर्फ खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करती हैं बल्कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज को भी आम करती हैं। सबीलों के दरमियान ऐसी नुमाइशें देखने को मिली जहां करबला की तारीख बयान की गई थी। साथ ही मुख्तलिफ जंगों में शहीद हुए फौजियों की तस्वीर को भी जगह जगह नुमाया किया गया था। इराक़ की तारीख़ खून से रंगी हुई है, जंग और जदाल से भरी हुई है। इस वक्त हम नजफ़ रोड पर वाक़ एक नुमाइश में मौजूद हैं जहां पर उन फ़ौजियों की तस्वीरें मौजूद हैं जिन्होंने दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। तो इस नुमाइश के ताल्लुक़ से मज़ीद जानते हैं। نحن هنا نقيم المرة الأولى وفي السنة الأولى هكذا مهرجان الهدف منه هو التعريف بالشهداء العراقيين التي استشهدوا أثناء مقارعة النظام الصدامي، النظام البائد، وشهداء الحد الشعبي. البعض من الشهداء في الصور كما ترون شهداء إيرانيين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشهداء في مقاومة حزب الله لبنان. رأينا أنه من الواجب علينا أنه إكراما وتقديرا لهم أنه نقوم بتعليق صورهم هنا التي استشهدوا في العراق. There's martyred in 2014 those who went to fight ISIS, Al-Hashd al-Shabi who fight ISIS, they were martyred here, some pictures. Also in time of 1991 when the revolutionists of Iraq stood against Saddam Ryan. Also you see the martyrs here, Iraqi and Lebanese and also Iranian, and we are quite proud of those actually who died in our country, and we really have the respect to lift our pictures here. अरबईन की सरगर्मियों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली सिंधी जो करबला टीवी के आईटी मैनेजर हैं, आईटी इंचार्ज हैं। मैं तकरीबन अभी 15 साल से ये अरबईन का सिलसिला जारी है, ज़ियारत अरबईन, और अरबईन में मिलियंस में लोग
ज़ियारत करते इमाम हुसैन को पैदल चल के, वो अक्सरन जो है ना अपने अपने घरों से निकल के पैदल आते हैं करबला। अक्सरन जो दूर तरीन इलाका है जहाँ से पैदल चल के आते हैं वो बसरा है, बसरा से लेकर करबला तक वो पैदल आते हैं अक्सर लोग, और बाकी के जो नज़दीक के लोग हैं वो भी थोड़ा दूर जाके वहाँ से पैदल आते हैं ज़ियारत करने के लिए। बहुत अच्छी मंज़र है, बहुत बेहतरीन रूही जगह है, और ये पैदल जब चल के आते हैं तो इसकी फीलिंग्स वो बहुत बेहतरीन होता है। एक वक्त था दाइश का यहाँ पर डर रहता था, ख़तरा रहता था, क्या वो ख़तरा ख़त्म हुआ है? देखिए, दाइश पहले से जो ना करबला के लिए ख़तरा नहीं था, करबला जो ना ख़तरे से बाहर था, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो दाइश ख़त्म हो गया। अब इसका कोई डर नहीं इराक़ में, करबला में तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल हालात बेहतर हैं, हालात पुरअमन हैं, पुरसुकून हैं। बिल्कुल, बहुत पुरअमन हैं, बहुत पुरसुकून हैं, और मैं ख्वाहिश करता हूँ जिस लोगों को डर लगता है एक दफ़ा आके देखें, यहाँ बहुत पुरअमन है जगह। जी बिल्कुल, भी हम भी यही देख रहे हैं नाज़रीन के इराक़ में जो है हालात पुरअमन हैं, खुशगवार बने हुए हैं, और इस खुशगवार माहौल में जो है अरबईन का सिलसिला जारी है। बहरहाल हर साल अरबईन में अक़ीदतमंदों की तादाद बढ़ रही है। हिंदुस्तान से इराक़ जाने वाले ज़ायरीन की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। अरबईन का ये मंज़र ये पैगाम दे रहा है कि अपने नाना के दीन को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी उसे रहती दुनिया तक याद किया जाता रहेगा। ये था हमारा खुसूसी प्रोग्राम जो करबला शहर से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। किसी ने क्या बड़ी बात कही है, कहानी बस इतनी है, कहानी बस इतनी है, यजीद था हुसैन है। फ़िलहाल मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन मीर रोशन अली, मोहम्मद कामिल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। हुसैन